माननीय मंत्री जी। Is laid on the table of the House. Sir, I thank the Honourable Minister for the very detailed response about the steps being taken by the Union Health Ministry on the scourge of TB. Sir, for a very long time, the problem with TB has been that a very large number of cases remained undetected. And it has been reported that the TB Mukt Abhiyan has targeted this and has been identifying a lot of cases which can be treated. The figures reported that in this TB Mukt Abhiyan, 5 lakh screening camps have been held and 6 crore individuals have been screened. 2 lakh new cases have been found. I would like to ask the Honourable Minister that this is a very good first step of identifying the cases. What are the steps being planned and what is the roadmap ahead for addressing the treatment of these individuals so that we can really become TB Mukt in Bharat? Speaker, sir, we started with the National TB Elimination Program and we are moving fast in the direction of creating a TB-free India by 2025. I would like to begin by quoting some of the achievements of India in respect of TB elimination, which are being lauded in the WHO Global TB Report. Today in India, with the consistent efforts of the government, the incidence rate has gone down by 17.7%. TB mortalities have reduced by 21.4%. TB treatment coverage has expanded by 32% between the year 2015 and 2023. And even the MDR TB cases have gone down by 20%. Insofar as the detection of the missed cases is concerned, sir, we have brought down from the missing cases from 15 lakhs to 2.5 lakh. And it is the constant effort of the government that we continue to find these missing cases for which active screening is required. We lately launched the 100 days intensified campaign in 347 high burden prioritized districts, wherein we went on specially to the vulnerable groups of population. We carried out active screening, and as soon as these cases are diagnosed, we try to put them on treatment and also link them to the nutritional support. I would like to quote some of the achievements of the 100 days campaign, sir, how we have progressed in this campaign. This campaign will end after 2 days on the 24th of March. इस कैंपेन में सर हमने 7,47,000 निक्षय शिविर कंडक्ट किए. इसके अलावा 9 करोड़ 2 लाख हमने नए पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की है वल्नरेबल पॉपुलेशन में, और नए जो पेशेंट्स हमारे नोटिफाई हुए हैं वो 3 लाख से ज्यादा हैं. नए निक्षय मित्र हमारे रजिस्टर हुए हैं जो 1 लाख से ज्यादा हैं, और फूड बास्केट्स जो हम निक्षय पोषण योजना में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे लगभग 25.5 लाख, अभी इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 2,83,000 से ज्यादा बास्केट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तो ये हमारे 100 डेज का कैंपेन स्पेशली इसलिए चलाया गया है जिससे कि जो छिपे हुए केसेस हैं उनको हम ढूंढकर उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग कर सके. और मेरे सीनियर मिनिस्टर नड्डा जी ने स्पेशली इस कैंपेन के दौरान देश भर के सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, and a lot of line ministries were involved. They were also appealed so that we could do more and more active screening, and the moment we do early diagnosis we put them on treatment, and now treatment facilities are available up to the level of Ayushman Arogya Mandir also. Honorable Sir, this detection of undetected cases, as I said, is a very big first step, and the Honourable Minister has pointed out the steps that are being planned. My question is regarding the NTEP, the National Tuberculosis Elimination Program, and in relation to this, the Nikshay Poshan Yojana, which the Honourable Minister referred to, has this amount of 1,000 rupees a month, which I think is a very important aspect because people suffering from TB are often unable to work, and this financial assistance is very important. I would like to ask the Honourable Minister, what are the number of patients that are being assisted by this financial assistance, and is this being done through DBT or through some other method? So nutrition is a very big risk factor for TB cases, TB patients.
ड्रग्स तो हमें देने ही है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड right amount of nutrition to the TB patients, for which Government of India under the NTEP started giving a financial incentive of 500 rupees, which has lately been enhanced to 1000 rupees. And I'm very happy to state that we have disbursed so far 3,635.29 crore amount through DBT to 1.24 crore TB patients so far. I would also like to mention here, sir, in respect of nutrition, that there are patients who are severely malnourished and whose body mass index is less than 18.5. For them, we have introduced an energy-dense nutrition supplement which is provided in the first 2 months of the treatment. Third important thing is, sir, the nutrition food basket, which was up till now given to only TB patients, now we have extended it to the family members, the close contact of the TB patients also. माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि जिन दवाइयों की सेल्फ जांच में फेल हुई, उन दवाइयों कंपनियों के नाम आप मुझे इस महान सदन में बताएं और उनके साथ की FIR हुई है या नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों में जो नकली दवाइयों के कारण जिन लोगों की जांच हुई है, जान चली गई, विशेष रूप से जो ग्रामीण दूर दराज से क्षेत्र में जो सरकार जिन प्रभावी निर्दोष लोगों की जिस प्रकार उनको कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला है, माननीय मंत्री जी? अनुमति हो तो मैं थोड़ा विस्तार से इस सवाल का विस्तार जवाब मत देना। करो, आप तो शॉर्ट में बता दो। अध्यक्ष जी, जहां तक ड्रग्स की बात है, NSQ, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड या मिसब्रांडेड ड्रग्स की क्वालिटी और एफिकेसी को चेक करना, सेफ्टी को मेंटेन करना, ये नेशनल ड्रग रेगुलेटर CDSCO की जिम्मेदारी है। ये प्रक्रिया लगातार चलती है। इसके तहत मार्केट सर्वेलेंस की हमारी एक एक्टिविटी है, जिसके तहत हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, उनकी टेस्टिंग करवाते हैं, और अगर वो NSQ, एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड या स्पूरियस पाए जाते हैं तो हम एक मंथली बुलेटिन अपना चलाते हैं, ड्रग अलर्ट, जो कि cdsco.gov.in हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी कि कौन सी ड्रग्स हैं स्पूरियस या कौन सी कंपनीज हैं, क्या एक्शन हुआ, आपको उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं वेबसाइट में आप ये हम हर महीने ये जानकारी अपने वेबसाइट पर ड्रग अलर्ट की हेडिंग में डालते हैं, किसके खिलाफ एक्शन हुआ, किस कंपनी के खिलाफ हुआ, कौन सी ड्रग अप्रोप्रिएट नहीं पाई गई, ये हम निरंतर जानकारी अपलोड करते हैं। ड्रग्स इन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रोविजंस के अनुरूप जो भी उचित एक्शन होता है, उचित फोरम के माध्यम से वो एक्शन लिया जाता है, चाहे किसी को शो कॉज नोटिस देना हो, चाहे किसी का लाइसेंस कैंसिल करना हो, चाहे स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देना हो, चाहे स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर देना हो, सब कुछ ड्रग्स इन कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 के प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। हमारे नाम बताओ, क्या जवाब स्पीकर साहब को दिया जाता है। तो सर, ये जानकारी अगर उनको किसी कंपनी के बारे में या ड्रग के बारे में चाहिए तो मैं उनको निवेदन करूंगी कि वो हमारे वेबसाइट पर जाएं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बार मैं वही पूछ रही हूँ कि वेबसाइट में मैं क्या देखूं? मुझे आप इस महान सदन में बताओ कि भाई वो कंपनियां हैं, उनकी जांच तो हो। आप बोलो तो सही। सर, मेरे पास पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है सर। इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं। अब अगर मैं पूरी लिस्ट निकाल के पढ़ना शुरू करूंगी तो सदन का वक्त यहाँ जाया होगा। आप इनको भिजवा देना। मैं आपको भिजवा दूंगी सारी लिस्ट। आपको कितने साल का ब्यौरा चाहिए? हर महीने का ब्यौरा भिजवाऊंगी, हर राज्य का ब्यौरा भिजवाती हूँ। जिन कंपनीज के खिलाफ एक्शन हुआ है, हर कंपनी का, हर ड्रग का डिटेल मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगी। I'm afraid, sir, this is a genuine problem. It has even affected our country's reputation abroad because spurious drugs have been sold. There were also reports that the army is receiving goods of substandard quality from many of our pharmaceutical manufacturers. So the real issue is a lack of credible central standards to actually inspect these firms. My own state of Kerala, sir, 90% of the drugs sold in my state are from other states.
but we have no common central standard to evaluate the quality of the drugs that are coming. If there is a case, sir, you won't believe it, under the Act of 1940, you have to get the details about the constitution of the manufacturing and marketing companies in order to file a formal complaint in court. There is no central database, no central pool for obtaining these documents. We have to send letters to the drugs controller of the states or the union territory in which the manufacturer is located. Then if there are no answers, an investigative officer has to be sent to Uttarakhand or Himachal or somewhere else to physically pick up the documents. 90% of the time we don't get the documents. Sir, the problem is, what can the central government do about ensuring central standards, creating a common database to which state governments can have access, and thereby creating a central regulatory environment that protects the country's reputation from spurious drugs. Thank you very much. सबसे पहले तो बात कंट्री की रेगुलेटरी सिस्टम की रेप्यूटेशन के बारे में, मैं इसके बारे में कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगी सर। आज हमारे कंट्री का जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है, जो नेशनल रेगुलेटर है सर, हमारा इंडियन फार्माकोपिया जो है वो आज दुनिया के 13 देशों में रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा सर WHO ने अभी NRA रीबेंचमार्किंग की थी, जिसमें जो इंडिया का नेशनल ड्रग रेगुलेटर CDSCO है, उसके मैच्योरिटी लेवल 3 विद हाईएस्ट मार्क्स इसको रिटेन किया है। सर आज इंडिया अफिलिएट मेंबर है इंडियन मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का, विच इज ए कोलैबोरेटिव ग्रुप ऑफ ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स। अभी रिसेंटली सर हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज 19 कॉन्फ्रेंस पहली बार इंडिया में हमने होस्ट किया है। ये हमारी इमेज है, ये हमारी रेप्यूटेशन है। जहां तक हमारे ड्रग सेफ्टी और ड्रग सेफ्टी या ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बात है सर, हम पहले तो हम रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस करते हैं सर, जो जॉइंट इंस्पेक्शन होते हैं, जिसमें CDSCO के ऑफिसर्स भी होते हैं, जोनल सब जोनल ऑफिस के ऑफिसर्स भी होते हैं, स्टेट ड्रग रेगुलेटरी ऑफिसर्स के अफसर भी होते हैं, और इन जॉइंट इंस्पेक्शंस की प्रॉपर चेकलिस्ट होती है, गाइडलाइंस रहती हैं, जिसमें इंस्पेक्शन की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या टेस्टिंग लेबोरेटरीज इनके इंस्पेक्शंस हम करते हैं, ताकि हम देखें कि वहां पे जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेटली हमने सर अपने शेड्यूल M को भी रिवाइज किया है। इसके अलावा जो हमारे कुछ और स्टेप्स हमने लिए हैं सर, हमने ड्रग्स के लिए QR कोड को मैंडेटरी किया है प्राइमरी पैकेजिंग पे, सेकेंडरी पैकेजिंग पे, ताकि उसका हम ऑथेंटिफिकेशन कर सके। हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए QR कोड को मैंडेटरी किया है, ताकि हम ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कर सके। और जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आए हैं 850 करोड़ की सर। इस स्कीम के अंतर्गत हमारी जितनी भी स्टेट्स के अंदर भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, हम नए टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित कर रहे हैं, पुराने एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो हमारे ड्रग रेगुलेटर्स ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। 753 करोड़ हम रिलीज कर चुके हैं। नई हमने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टैब्लिश की है इंदौर में, भुवनेश्वर में। तो हम सारे काम कर रहे हैं, हमारी ग्लोबल रेप्यूटेशन भी बढ़ रही है, ड्रग सेफ्टी और एफिकेसी के लिए हम कदम उठा रहे हैं, और ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी लगातार हम कदम उठा रहे हैं। श्री सौमित्र खान। सर, मेरे को जो जानने की इच्छा है, पश्चिम बंगाल में आप जो नेशनल हेल्थ मिशन का अंडर में आपका नेशनल केंद्रीय आरोग्य मंदिर बनाया, तो कितने हमारा पश्चिम बंगाल में कितने सारे आपका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया केंद्र सरकार का सहयोगिता में, और हमारा एक म्यूनिसिपलिटी एरिया शनामुखी, वहां पे अस्पताल बन सकता है क्या नहीं है? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न हमारा ड्रग रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है, CDSCO से जुड़ा हुआ है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा वो NHM से रिलेटेड है।
तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि वो अलग से एनएचएम के तहत प्रश्न उठा सकते हैं और बाकी सदन की जानकारी के लिए, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इतना कहना चाहती हूं कि एनएचएम के तहत जो भी प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं वो स्टेट पीआईपीज के जरिए प्राप्त होते हैं। तो माननीय सदस्य के क्षेत्र में उनके राज्य का कोई सुझाव है, स्टेट पीआईपीज के जरिए वो हमारे एनएचएम को भिजवाएं यहाँ पे सेंटर में, तो हम उसे अप्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 305, डॉक्टर डी पुंडेश्वरी। Sir, question number 305, sir. माननीय मंत्री जी, From the table of the House. ऑनरेबल मेंबर। Sir, in the reply given, it has been mentioned that the incidences of TB has come down by 17.7% since 2015, sir. This is a remarkable achievement for sure, and I would like to congratulate the Honorable the Union Health Minister Nadda ji and Anupriya Patel ji in actually achieving this success. Having said that, sir, despite this progress, there are certain high-risk populations, such as the urban slum dwellers, the tribal population, and also people who are exposed to hazardous occupations like people engaged in mines and also the construction workers, sir. And they face the disproportionate TB burden in our country. Sir, the minister in his reply earlier had mentioned that they have engaged mobile health vans and also handheld screening machines to actually reach out to the people. But sir, we need to understand that the tribal population live in very difficult terrains and are far-flung. So my question would be as to how successfully have these mobile vans and the handheld TB screening machines reached the tribal areas, sir? And what are the measures taken to bring in awareness, to improve awareness in the tribal people, because they go by traditions and they do not believe in the modern technologies and interventions? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पूर्व के प्रश्न में बहुत विस्तार से 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन के बारे में बताया था। Under this campaign, our special focus was on the vulnerable groups. Vulnerable groups include many kind of people, the PLHIVs, the alcoholics, the smokers, the people living in old age homes, asylums, orphanages, and even tribal communities. So we specially deployed the Nikshay Vahans, these mobile medical vans, which were equipped with the screening and diagnostic machinery and equipments which could reach out to the most remotest areas, the vulnerable population, the tribal groups, and we screened them, and we have been able to screen a large number of people. I just quoted the figure. My senior minister said 11 crore people have been screened under this 100 days effort. So no stone has been left unturned to reach out to our tribal population, and our frontline health workers are working at the grassroots level to increase awareness, sir. We are also involving the community because we understand alone government cannot make this happen. So community involvement is also been given a lot of emphasis, and now community engagement, it has become a Jan Andolan. So awareness is not really an issue. जल्दी किया करें, बहुत लंबा करते हैं। Made great strides in TB control. Multi-drug resistant TB is still a challenge for us in our country, sir. So my question to the Honorable Minister would be, what are the strategies that the government is implementing to ensure better treatment adherence? Because largely, sir, these people who are undergoing treatment tend to discontinue it because of the long periods and also because of logistic problems that they face. So what are the measures that the ministry is undertaking to ensure that there is better treatment adherence? And also, sir, would this include digital treatment monitoring and community-based interventions as well, sir? Sir, MDR TB patients के लिए we have introduced, we earlier had a treatment regimen which was for a longer duration, 9 to 11 months, but recently we have come up with an even more short duration regimen which is only for 6 months. So it is shorter, it is safer, it is efficacious. It is called BPAM. My Honorable Senior Minister has already explained, sir. And we are maintaining good amount of drug stocks, and we are also tracking and monitoring so that drugs in sufficient quantity are always available.
We have also enhanced the number of the MDR TB treatment centers in the country from 126 to 826. श्री गुरजीत सिंह औजला। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा आपके जरिए मंत्री जी से सवाल है कि बॉर्डर एरिया में अमृतसर में जो हॉस्पिटल है टीबी का 1937 का बना हुआ है, देश की आजादी से पहले का, 100 का प्रावधान है बेड का वहां, लेकिन सर हालत बहुत पतली है, गरीब लोग ज्यादा वहां आते हैं। मेरा सवाल यही है कि टीबी की दिक्कत बॉर्डर एरिया के क्योंकि डेवलपमेंट कम है, सर सरकार कोई प्रावधान कर रही है कि ऐसे हॉस्पिटल जो बॉर्डर एरिया में है, जो देश की आजादी से पहले नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा हॉस्पिटल है सर उसके लिए सरकार को ध्यान देगी, उसके प्रोफेसर भी कम है, फैकल्टी भी कम है सर। थैंक यू। मंत्री जी बोल। हाँ। एक स्पेसिफिक अस्पताल के बारे में आपने पूछा है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि वो मुझे लिख कर दे, मैं इसके बारे में जानकारी कर लेती हूं और इसमें जो भी स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी है वो हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 306 डॉक्टर शिवाजी बड़प्पा कालगे। माननीय मंत्री जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 306 सर। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table of the House. ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं किलकारी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसके लिए सरकार का अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लातूर में किलकारी कार्यक्रम के तहत कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है, उनकी संख्या कितनी है। साथ में मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर में किलकारी कार्यक्रम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, उसकी संख्या कितनी है। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, मैं किलकारी कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। किलकारी कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हमने 2016 में की। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हैं, सवाल मंत्री जी से पूछा था, स्पीकर से नहीं पूछा था। चलो। अध्यक्ष महोदय, प्लीज लिसन टू मी, हियर मी आउट, आई एम टेलिंग यू। किलकारी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एक मोबाइल बेस्ड सर्विस है जिसमें हम जो हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली 72 ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं टू एनहांस देयर अवेयरनेस एंड द अवेयरनेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स अबाउट गुड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉर द न्यूबॉर्न. These messages are specially tailored as per the gestational period and they start around the second trimester of pregnancy, which is extremely critical period. Sir, इस किलकारी प्रोग्राम के अंतर्गत अभी जो 27 राज्यों में चलाया जा रहा है, 13 लैंग्वेजेस में चलाया जा रहा है, हमने बहुत सारे सक्सेसफुल कॉल्स किए हैं और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि गर्भवती महिलाओं ने, उनके परिवार ने ऑडियो मैसेजेस के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी या एडवाइस हम उनको देते हैं उसका पालन किया है और इससे हमारे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में असर पड़ा है। हमारे IMR और MMR के इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा कारण एक कंट्रीब्यूशन किलकारी प्रोग्राम का भी है। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिकली अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछा है कि कितनी महिलाओं को कॉल्स गए हैं। मेरे पास अभी वो रेडी डेटा इनके संसदीय क्षेत्र का नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें भिजवा दूंगी। ऑनरेबल सप्लीमेंट्री। मैडम, मैं और पूछना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी प्रोग्राम अगर आप लॉन्च करते हो तो उसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे रहना, मौजूद रहना जरूरी है। हमारे चुनाव क्षेत्र में जहां पर पिछले 10 साल से सिविल हॉस्पिटल की कमी है, प्राथमिक आरोग्य केंद्रों की कमी है, MPWs की कमी है और ANM की कमी है। ऐसी परिस्थिति में प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम सरकारी उस एरिया में अच्छी तरह से चलाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को ये सब चीजों में इंप्रूवमेंट करने के लिए आदेशित करेगी? थैंक यू। अध्यक्ष जी, यदि स्पेसिफिकली किलकारी के संदर्भ में सांसद जी कह रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगी कि किलकारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, IVR ऑडियो मैसेजेस हैं
इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो मैसेजेस हैं और एक्चुअली में इन मैसेजेस के कारण जो आशा का काम है वो काफी कम हुआ है, क्योंकि अब फिजिकली उनको कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, फोन के माध्यम से ही जानकारी चली जाती है। बाकी आपने अपने क्षेत्र में जो सिविल हॉस्पिटल या पीएचसी या आशा के बारे में जो विषय उठाए मल्टीपर्पज वर्कर को लेकर, ये सारे विषय राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार एनएचएम में स्टेट पीआईपीज के माध्यम से प्रपोजल भेजते हैं, हम उसके लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो आपके राज्य में कोई भी कमी है, आप स्टेट के पीआईपी में प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान में प्रस्ताव भिजवाइए, सेंटर को इसमें कोई समस्या नहीं है। श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किलकारी योजना 15 जनवरी 2016 को डिजिटल इंडिया की पहल में एक भाग के रूप में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह योजना महिलाओं को उनके गर्भावस्था, प्रसव और शिशु के जन्म के बाद तक के समय में उचित जानकारी और सहायता प्रदान करती है। यह अच्छी बात है जिसका मैं स्वागत भी करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं दादरा नगर हवेली संसदीय क्षेत्र से आती हूँ। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में किलकारी कार्यक्रम के तहत कितनी प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला है, और महोदय जब से यह योजना शुरू हुई उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कितनी प्रतिशत कमी आई। साथ में मैं यह भी जानना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में कुपोषण की समस्याओं को दूर करने में कितनी मदद मिली। सिर्फ दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव में टोटल हमने 59,414 सक्सेसफुल कॉल्स अचीव किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, और डिस्ट्रिक्ट दादरा नागर हवेली में 35,097 सक्सेसफुल कॉल्स हमने अचीव किए हैं। और स्पेसिफिकली आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कमी आई है वो स्पेसिफिक डेटा नहीं है सर, लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर आज मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी में भारी कमी आई है सर। हमारा जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वो आज ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन से कहीं ज्यादा है। हमारा एमएमआर 83% से डिक्लाइन किया है, ग्लोबली रेट ऑफ डिक्लाइन 42% है। आईएमआर हमारा 59% से डिक्लाइन कर रहा है, ग्लोबली ये 69% के करीब है। तो हमारे जो नेशनल फिगर्स है वो काफी तेजी से इसमें गिरावट आई है। स्पेसिफिकली आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या इसमें गिरावट आई है ये जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगी। श्रीमती मीसा भारती। सर माइक चालू। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने बिहार प्रदेश के तरफ से एक प्रश्न माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे पटना एम्स को अपना डायरेक्टर कब मिलेगा। मंत्री जी कृपया करके बताने का कष्ट करें। सर ये किलकारी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का प्रश्न लगाइए उस पर आपको उत्तर जरूर मिलेगा। एम्स में डायरेक्टर थे, एक कारण से उनको वहां से हटाया गया है, बहुत जल्द नया डायरेक्टर लगा दिया जाएगा। श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी संरक्षण के लिए। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से ये है कि अभी आशा बहनों का जिक्र हुआ, उनके कार्य को हम लोग समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आशा बहनों के मानदेय वृद्धि का कोई कार्यक्रम आपके पास है? उनका वेतन वृद्धि किया जाएगा, वो ऐसे ही मिनिमम वेतन में अपना जीवन जो है बदहाल होता रहेगा उनका? बस मेरा आपसे जानने का ये सवाल है माननीय मंत्री जी कि आशा बहनों के वेतन वृद्धि कोई कार्यक्रम आपके पास है या नहीं? धन्यवाद। सर आशा बहनों के संबंध में नड्डा जी ने ऑलरेडी पहले उत्तर दे दिया है, ये इस विषय से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आशा हमारी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्रामीण महिलाओं, बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और हमारे तमाम कार्यक्रमों के इम्प्रूवमेंट्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने पहले कह दिया है कि विषय से जुड़ा नहीं है, इससे अलग से बात हो जाएगी, तो जो भी सरकार का पर्सपेक्टिव है वो माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 हेमा मालिनी। अध्यक्ष महोदय,
मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब पहले प्रश्न संख्या बोल दें आप। 307 माननीय मंत्री जी। यस, विवरण सदन के पटल पर रख माननीय सदस्य प्लीज। मेरे प्रश्न का जवाब बहुत ही स्पष्टता और विस्तार से उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना से संबंधित। एक ही सप्लीमेंट्री मिलेगा, 12 बज गई, आप शोर पूछ रहे हैं। बोलो, 12 बज गई, आप समाप्त करें। जल्दी जल्दी बोल दिया महोदय। आप पढ़ के मत बोलो, बिना पढ़ के पूछ लो। लेकिन शिकायतें आती है कि दिस इज अबाउट 50 करोड़ लाभार्थी के साथ आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, लेकिन इसका सफलता बहुत ही सफल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी शिकायतें हैं इसमें। लेकिन शिकायतें यही है कि लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होते हुए भी बेड नहीं होने या फिर जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण बताकर अस्पताल द्वारा इलाज में मना कर दिया जाता है। इसके कारण आयुष्मान कार्ड होते हुए भी जरूरतमंद लोग पैसे देकर उसी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं। आयुष्मान भारत लगभग 63 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। कोई केस हो तो आप मुझे अलग से बता दें, but 63 crore people are being given the benefit of Ayushman Arogya Mandir, Ayushman Jan Arogya Yojana, which is the world's largest health coverage program, which we have to understand. प्रश्नकाल समाप्त।